Hello guys and girls, welcome to the YouTube channel of Vishwas Nishant. As you all know, we were discussing macroeconomics, which is useful for class 12th, as well as all competitive exams conducted by UPSC. We were discussing chapter 4 of the economics, and this is part 3 of that chapter 4, in which we are going to touch the expenditure method for calculation of national income. So the heading of the chapter is expenditure method. Now, when we consider expenditure method, we understand the term expenditure in this method as an amount which has been spent on the purchase of goods and services, final goods and services rather, in an accounting year. Now, when it comes to final expenditure, the final expenditure can be in terms of consumption and investment. No need to cram it. Think it yourself. If you are spending your money and in case of that spent, you are saying that this is my final spent, मैं इसको आगे बेचने के लिए यूज नहीं करूंगा. It means either you are going to consume it or that amount spent is just for the purpose of investment, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आप आगे बेचने नहीं वाले और वो चीज आप आगे बेचने नहीं वाले. That is what makes it final expenditure, and that is why this method is also known as consumption and investment method. It is also known as income disposal method, because when you are going to dispose of your income, it will be in two terms: consumption and investment. There is no other third way. Obviously, EMI sir, हम EMI अरे sir, that is the part of consumption only, और that is a part of investment only. अगर आपने कोई और चीज खरीदी है for the investment purpose for which you are paying the EMI. So there are the two ways only in which you dispose of your income. Now, as it is an expenditure method and the amount being spent will be on the basis of prevailing market prices, so it comes out to be GDP at MP, that is market prices. कि जितना पैसा आपने खर्चा है वो मार्केट प्राइसेस पर खर्चा है. If you want to calculate the national income out of it, you can very easily do it after converting into NNP at FC. And how we do it, you can check into it to the previous lectures कि ये कैसे होता है, क्या किया जाता है इसके कन्वर्जन के लिए. Let's move ahead. We would be discussing this expenditure method in two spheres. The first sphere will be the classification of final expenditure. Sir, why are you using the word final again and again? This is the reason. Final expenditure. Because फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब ही यही है कि आप या तो कंजम्पशन के लिए यूज करो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करो. इसके अलावा आप कहीं और खर्चा करेंगे. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन. सो यू हैव टू फील दिस थिंग, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देन, एज आवर ओल्ड ट्रेडिशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस the precautions.
Starting with the classification. The final expenditure can be classified into 4 types. The first, private final consumption expenditure. Final consumption expenditure पता है private members के through. It is also denoted by capital C. Then government final consumption expenditure. Final consumption expenditure पता है गवर्नमेंट के थ्रू. It is denoted by capital G. Investment expenditure. Expenditure पता है for the investment purpose. It is denoted by capital I. And then net exports, which is export minus import. इसके बारे में थोड़ा सा पता करना, थोड़ा सा हमें पता है और थोड़ा सा डिटेल में पता करना. So these are the 4 types of expenditure. Coming on to private final consumption expenditure. The name is itself defining that it is expenditure on final goods and services. But by whom? By individuals, by households, and by non-profit organizations. सर ये 3 क्यों लिख दिए यहां? अरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो यही करेंगे ना, इंडिविजुअल्स आप जैसे मेरे जैसे, हाउस होल्ड्स हमारी फैमिलीज, वही फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, यही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. एंड द थर्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए आगे बेचेगा नहीं, एनजीओ चला रहा है तो वो बांट देगा, और वो ही क्या होगा आपका फाइनल कंजम्पशन, और फाइनल कंजम्पशन पर किया हुआ खर्चा. नाउ फाइनल गुड्स कैन बी ऑफ 2 types. The one is durable and non-durable. Durable goods are those goods which can be repeatedly used for several years. Non-durable, which has to be used instantly. सालों के लिए छोड़ो, कुछ दिनों के लिए यूज कर लो तो बहुत बड़ी बात है, जो नॉर्मल डेली बेसिस पर हम यूज करते हैं. ये क्या हो सकता है कि आपने अपने घर के लिए फर्नीचर ले लिया, आपने अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन ले ली. दिस इज ड्यूरेबल फाइनल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल फाइनल गुड्स, यू परचेज मिल्क ऑन डेली बेसिस, you purchase vegetables on daily basis, not durable. Coming on to services, obviously they would be using the consumer services. ये और कौन सी सर्विसेज यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये कंज्यूमर सर्विसेज ही तो यूज करेंगे.
Coming on to the government final consumption expenditure. Now, the definition is same. That is expenditure on final goods and services. The only thing changes is the party. That is the government. Sir, government कैसे final consumption expenditure करे? Government ने बेचारी ने क्या कर? Let's say government is spending on the consumption for the defense personnel. अब खाना तो खिलाना है क्योंकि आप उनसे काम ले रहे हो, आपने उनको प्रोजेक्ट पर भेजा है, तो खाना कौन खिलाएगी? सरकार. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसी की रिलेटेड सर्विसेज, उसी से रिलेटेड फाइनल गुड्स, तो वो किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है. देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. द नेम इज इटसेल्फ डिफाइनिंग. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेंडिचर on the purchase of final goods. I'm writing it over here. Expenditure on the purchase of final goods, interestingly, by producers. Sir, if the producer is making a consumption, is making an expenditure on final goods, it means it will further use in the process of production. प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो. मैं प्रोड्यूसर भी हूं जब मैं अपनी फैक्ट्री में हूं. आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड अगर मैं अपने घर पे हूं. सो प्रोड्यूसर है, सो ही और शी विल स्पेंड मनी ऑन द फाइनल गुड्स फॉर further process of production. Now, for further process of production. तो सर ये फाइनल गुड्स क्या क्या हो सकते हैं? देखना ध्यान से. दे कैन बी fixed investment, and there can be inventory investment. एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फॉर द फिक्स्ड पर्पस, मींस फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट है. शायद इसको मेरे को डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके. एक स्टेटमेंट में समझाने की कोशिश करता हूं. मेरी दुकान जो है वो कपड़े बेचने की है और उसको डिस्प्ले करने के लिए आई नीड टू स्पेंड सम मनी ऑन द फर्नीचर. तो फिक्स्ड एसेट ही तो है वो कि जब तक मेरी कपड़े की दुकान चलेगी, अगले एटलीस्ट 5 साल 10 साल, तो फर्नीचर वैसे का वैसा ही रहेगा. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द चेंज इन स्टॉक. कि आपके पास आज बेचने के लिए दुकान पे मेरे पास 10 शर्ट और 10 पैंट है और मैंने इस साल 5 शर्ट और 5 पैंट ऐड कर ली हैं अपनी इन्वेंट्री में. सो दैट इज द चेंज इन स्टॉक. स्टॉक कितना चेंज हुआ? इट मींस अगर सिंपल तरीके से इसको निकालें तो इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस द ओपनिंग स्टॉक. तो आपको चेंज पता लग जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 15 पैंट्स एंड 15 शर्ट. ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10 पैंट और 10 शर्ट. तो व्हाट इज द चेंज इन स्टॉक? 5 पैंट और 5 शर्ट. हाँ, कि पूरे साल कुछ बिका नहीं है, तब ये वैल्यू आएगी. ठीक है. नाउ ये तो सिंपल टर्म्स में समझा. अगर आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्टॉक, तो स्टॉक इंक्लूड्स 3 थिंग्स मेजरली. द फर्स्ट इज द फिनिश्ड गुड्स,
which are ready to be sold in the market. The second is raw material, जिन पर अभी प्रोसेसिंग करनी है, वो रॉ मटेरियल है. एंड द थर्ड थिंग इज सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है. सो ये तीन चीजें विल कंप्राइज ऑफ द स्टॉक. कमिंग ऑन टू द फिक्स्ड एसेट. अब जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये अगर बिजनेस के टर्म्स में हो रही है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगी. ठीक है. अब हाउस होल्ड भी तो कर सकते हैं. ऊपर फाइनल गुड्स हम डिस्कस करके आए थे, ये फिक्स्ड एसेट कि आपने ड्यूरेबल फाइनल गुड्स हैं. ठीक है. ये गवर्नमेंट भी कर सकती है. किसी गवर्नमेंट सर्विस वाले इंसान के लिए आपने घर खरीद के रख लिया. ठीक है. सो ये फिक्स एसेट सबके टर्म्स में हो सकती है, लेकिन यहां पे हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं. प्रोड्यूसर्स के लिए हाँ, आप उसको वहां ना दिखाकर यहां पर दिखाना चाहते हो, यहां पर भी दिखा सकते हो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर. मर्जी आपके, कोई टोटल तो सेम ही आना. द नेक्स्ट थिंग इज नेट एक्सपोर्ट्स. टू अंडरस्टैंड द नेट एक्सपोर्ट्स, we need to look into two things, and you all know what is that. The first is, sir, what is export, and sir, what is import? Export is expenditure by foreigners, on the goods produced in domestic market या डोमेस्टिक टेरिटरी, टू बी स्पेसिफिक. कि कोई चीज मैंने एक्सपोर्ट की मतलब इंडिया में प्रोड्यूस की हुई चीज को मैं बाहर भेज रहा हूं. क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि फॉरेनर ने मांगी है. सो इट इज एक्सपेंडिचर by a foreigner on goods produced in domestic market, or you can say domestic territory. Services भी हो सकती हैं. On the other hand, what is import? Import is expenditure by the residents on the goods and services produced in foreign market or in foreign territory. सिंपल है. इसमें से इसको माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा. हमने इन तीन चीजों में सीखा कि हम तीनों को ऐड क्यों कर रहे हैं. क्योंकि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं कि खर्चा कितना हुआ है, उसके बेसिस पर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. क्योंकि खर्चा इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन. ये हम पहले समझ चुके हैं, हम मान के चल रहे हैं ये चीजें. फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था. सर समझ नहीं आया कि ये माइनस क्यों कर रहे हैं. ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है वैसे, फॉर स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th. बट द पॉइंट इज जस्ट टू जस्टिफाई द इनर कॉन्शियस, कि एक बार समझ आ जाए ना कि ये क्यों हो रहा है तो मजा आ जाए. एंड जिंदगी इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन. ठीक. सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो. अगर आप याद करो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्शन हुआ है इंडिया की टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में. सो ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है. वो चाहे कोई भी खर्च कर रहा है, हमें तो जीडीपी कैलकुलेट करनी है. सर एक्सपेंडिचर तो फॉरेनर्स कर रहे हैं, बात ठीक है. और आप एक्सपेंडिचर मेथड की बात करो, बात ठीक है. अगर वो फॉरेनर्स ना खर्चते तो हो सकता था वो यहां बनता और यहां वाले लोग खरीदते. सर अगर यहां वाले लोग ना खरीदते तो फिर वो बनता ही नहीं भाई, वो बनता ही ना. और बनता नहीं तो जीडीपी का पार्ट ना होता. जीडीपी मींस कि आपने यहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीज प्रोड्यूस की है, परचेज बाहर वाला कर रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू में ऐड कर दूंगा, इसीलिए जीडीपी एट एमपी आएगा स्टार्टिंग. तो इसको तो आप क्या करोगे सर? प्लस करेंगे. सिंपल सी बात है, वही मैं कह रहा हूं. सर इसको क्यों माइनस करोगे? सर एक बात बताओ, रेजिडेंट्स ने खर्चा तो किया ही है ना.
आप कैलकुलेट कर लोगे कि सर एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं, इस खर्चे को गिनो। मैं कहूंगा बेटा ये खर्चा उन पर नहीं हुआ है जो चीजें यहां पर प्रोड्यूस हुई हैं, ये खर्चा उन पर हुआ है जो चीजें बाहर प्रोड्यूस हुई हैं। तो फिर अरे बेटा वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी ना, याद करो। जस्ट बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग जीडीपी तो आप उसमें ये चीज थोड़ी ऐड कर दोगे जो फॉरेन टेरिटरी में हुआ। इसलिए आपको खर्चा तो है एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड तो होना चाहिए, बट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये दूसरा फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है और जीडीपी के लिए वो गुड का यहां प्रोड्यूस होना जरूरी है। दैट इज वाई एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाउ सिंपल इज दैट? और हम इन चीजों को रट्टा मारते रहते हैं। हाउ सिंपल इज दैट? फाइन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, दिस इज द क्लासिफिकेशन। लास्ट में देखते हैं हर बार की तरह, पहले अब एक अपनी पुरानी रीत पूरी कर लेते हैं, दैट इज टू डिस्कस द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में अगेन देयर वुड बी टू कॉलम्स। द फर्स्ट, द थिंग्स which are included and the things which are not included. The things which are included, that you have to consider only and only final expenditure. सर ऐसा क्यों? भाई साहब डबल काउंटिंग ना हो जाए। अब ये क्या होता है? यू नीड टू रेफर टू द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 4। वहां पे आई हैव डिस्कस द डबल काउंटिंग इन वेरी डिटेल। ठीक है, सो यू कैन रेफर टू दैट, वापस यहां पर आओ और आप देख सकते हो। सो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, सॉरी कंसीडर करना है टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। देन द सेकेंड थिंग which has to be included is the estimated value of expenditure on goods produced for self consumption. आपने अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने सेल्फ कंज्यूम कर ली, बनाई भी आपने थी, तो उसकी वैल्यू तो ऐड करोगे ना, क्योंकि आप ना खर्चा करते तो भी आप वो कंज्यूम करते, तो कोई ना कोई और कंज्यूम करता, सॉरी, ठीक है, या आप प्रोड्यूस ना कर रहे होते तो कोई और प्रोड्यूस करता, तब आप खर्चा करते। तो खर्चा तो है, हाँ आप प्रोड्यूसर हो, आपकी एंटिटी अलग अलग होगी ना। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोड्यूसर, जब आप कंज्यूम कर रहे हो यू आर द हाउस होल्ड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। आगे चलते हैं, द थिंग्स विच आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। अगर मैं यहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं यहां पर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करूंगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो सेमी फर्निश्ड गुड्स पर आप करते हो या कोई ऐसी चीजों पर करते हो जो यू कैन से रॉ मटेरियल का पार्ट हो सकती है। डिटेल में समझना, यू नीड टू रेफर टू द पार्ट 1। देन एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। सर भाई है तो एक्सपेंडिचर बेटा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का जो वैल्यू है दैट हैज बीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड जब इस पे पहली बार खर्चा किया था, जब इसको पहली बार किसी ने कंज्यूम किया था। ठीक है, सो इससे डबल काउंटिंग हो सकती है, वो नहीं करनी है हमने। देन एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। सर ऐसा क्यों? शेयर और बॉन्ड क्योंकि ये किसी चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आप जो आपने खर्चा किया है शेयर्स और बॉन्ड्स पे, आप इसको ऐड नहीं करोगे, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पेपर का क्लेम है, एक पेपर पे क्लेम है कि आपके पास उसका परसेंटेज है। ठीक है, तो खर्चा नहीं, रेदर ये आपके इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आ सकता है और वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द नेक्स्ट दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। अब पापा ने आपको पॉकेट मनी भेजी,
उसको एक्सपेंडिचर थोड़ी कर सकते हो। वो तो फिर डबल काउंट होती है, एक बार पॉकेट मनी भेजी तब कैलकुलेट हुआ, एक बार आपने खर्चा किया तब कैलकुलेट होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो जब आप खर्चा करोगे तब कैलकुलेट कर लेंगे, पता नहीं आप करो ना करो, आप उसको सेव करके रख लो। सो ट्रांसफर पेमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है, बिकॉज एज सच दे डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन। वही एग्जांपल जो मैंने भी डिस्कस किया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट में आप उसके बदले कुछ परचेज ही नहीं कर रहे। दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड। इसको क्या क्या बोला जाता है और ऐसा क्यों बोला जाता है? फाइनल एक्सपेंडिचर हमने समझा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही क्यों होते हैं, और इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी क्यों कहते हैं। We discuss the chapter in two parts, the classification and the precautions. Classification, there can be 4 types. Private final consumption expenditure, which is done by household individuals, not profit organization. Government final expenditure, जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होगा, प्रोड्यूसर करेंगे। 2 टर्म्स में, फिक्स एसेट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, उस स्टॉक का चेंज, वी डिस्कस द एग्जांपल। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, व्हाई आर वी सब्ट्रैक्टिंग इंपोर्ट, डिस्कस्ड, ठीक। सो ये सारी चीजें, इसके अलावा किसी और तरीके की एक्सपेंडिचर नहीं है जिससे आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि आपने ये चीजें ऐड नहीं करनी है, और ये ऐड करनी ही करनी है तो सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर करना है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो गाइस, दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। This is your expenditure method on a single sheet. Hence, chapter 4 comes to an end within 3 to 4 pages. Just 3 to 4 pages. Thank you. That's all for today.